ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی۔ پنجگور میں میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ حملے۔ دفتر خارجہ کے مطابق آپریشن کو مرگ برسر مچار کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستانی حدود میں ایران کے حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ تہران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختاری سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے، اس کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے ثالثی کی پیشکش۔ کراچی میں چین کے قونصل جنرل یانگ یوڈونگ کا کہنا تھا کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ نگراں وزیر خارجہ نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہمیں کشیدگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایران سے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے دور میں ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے۔ سعودی عرب اور ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار بھی ادا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان نے ایران کو کافی سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے۔ آپریشن مرگ پر سرمچار سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ دونوں ممالک اس قسم کے تنازعات کو مزید بڑھنے نہ دیں۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ پرانے روابط ہیں، تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں ڈرون حملے اور زمینی دراندازی کو تیز کر دیا۔ مغربی کنارے میں حملے میں کم از کم 7 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 24,448 افراد شہید، 61,504 زخمی، جبکہ اب تک شہید بچوں کی تعداد بھی 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی تفصیلات جاری۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مجموعی طور پر 17,816 امیدوار میدان میں اترے۔ قومی اسمبلی کے 66 حلقوں میں 5,121 امیدوار میدان میں موجود ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 12,695 امیدوار ملک بھر میں 4 نشستوں پر خواجہ سراب انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف انتخابی مہم کا آج سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف آج حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ لیگی قائد قومی اسمبلی کے حلقہ N67 میں امیدوار سائر افضل تارڑ کے انتخابی جلسے میں شرکت کریں گے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں۔
वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ऐवान वजीर आला में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पंजाब हुकूमत और कनाडा के दरमियान इफराती कुव्वत को कनाडा भिजवाने के हवाले से मुजव्वजा मुआहिदे पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ माहौल खुसूसन स्मोक से निमटने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 को रशकई से पेशावर टूल प्लाजा और बुरहान से सवाबी, M2 को इस्लामाबाद टूल प्लाजा से छोकर न्यासबेग तक मुकम्मल बंद कर दिया गया। नामवर मुफक्किर शायर अदीब वासिफ अली वासिफ की आज 31वीं बरसी मनाई जा रही है। इनके अक़वाल आज भी दिलों को जज्बा ताज़ा बख्श रहे हैं। अगर एक तरफ इस शख्सियत की उर्दू और पंजाबी शायरी हमें अज़ली हकीकतों से आश्कार करती नजर आती है, तो दूसरी तरफ उनकी तसानीफ भी मौजूद हैं। इनके अक़वाल तादीर दिलों को जज्बा ताज़ा बख्शते रहेंगे। नामवर शायर व अदीब वासिफ अली वासिफ 18 जनवरी 1993 को खालिक के हकीकी से जा मिले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि ईरान की जानिब से फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगोर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए, मुतादिद फराद हलाक हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनागाहों से मुत्तालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शाहिद के साथ मुतादिद जज़ियस भी शेयर किए, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नेहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान कौम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद ये भी कहना था कि हमने हमेशा दहशत गर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंज से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर ही जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिशें भी जारी रखी। 2 रोज कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हुदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान ने अपने फिजाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हुदूद में हमले की शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ईरान की जानिब से फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगोर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले, मुतादिद हलाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग पर सरमचार का नाम दिया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतासिर दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतातिर डोजियर्स भी शेयर किए हैं, लेकिन संजीदा तहफुजात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नेहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतसलसिल अज़्म का मजहर है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि हमने हमेशा दहशतगर्दी के लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। 2 रोज कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थी। पाकिस्तान ने अपने फिजाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हुदूद में हमले की शदीद मुसम्मत की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। अपडेट करते चले आपको, बड़ी खबर है। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगोर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की भी जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले मुतादिद हलाक कर दिए। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग पर सरमचार का नाम दिया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनागाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतादिद रज़ियत भी शेयर किए, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नेहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता है और करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी की एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमने हमेशा दहशत गर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए बातचीत और ताउन पर ही जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिशें भी जारी रखी। 2 रोज कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हुदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थी। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हुदूद में हमले की शदीद मुजम्मत भी की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल होगी और इसके संगीन नताइज भी निकल सकते हैं। आपको अपडेट करते चले, अहम खबर है कि ईरान की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगोर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले मुतातिद हलाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग पर सरमचार का नाम दिया गया। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में मुतातिद दहशतगर्द मारे गए।
गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतातिर डोजियर्स भी शेयर किए हैं, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नेहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतसलसिल अज़्म का मजहर है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि हमने हमेशा दहशत गर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए बातचीत और ताबुन पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिशें भी जारी रखी। 2 रोज कबल भी ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जा बहक हो गए और 3 बच्चियां जख्मी भी हुई थी। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद की बिलाइश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद में हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज भी निकल सकते हैं। ईरान की जानिब से फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगूर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी मंजर आम पर आ गई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले मुतादिद हलाक कर दिए। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सीस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनागाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतादिद डोजियर्स भी शेयर किए, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नेहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मजहर है। दफ्तर खारजा ने तर्जुमान मजीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज नहीं होने देगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी रावलपिंडी से। इनसे बात करेंगे। अली असगर, मुझे बताइएगा कि ईरान की जानिब से फजाई हदूद की जो खिलाफ वर्जी की गई थी पंजगूर में हमले के जरिए, उसकी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की है, जिसकी वजह से काफी टारगेटेड हमले किए गए हैं, जिसमें काफी लोग भी हलाक हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इस इक़दाम के हवाले से? जी, ईरान को पता नहीं क्या सूझी हुई है। 15 तारीख से 3 ममालिक में मुख्तलिफ उसने हमले कर चुका हुआ। पहले उसने यानी कि रात में भी हमला किया और दूसरे ममालिक में भी किया, और पाकिस्तान में 16 तारीख की रात को उसने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर 2 बच्चे शहीद हुए और 3 जख्मी हुए थे। और ईरान को पता नहीं क्या सूझी हुई है कि वो पाकिस्तान, दुनिया के अंदर तो वैसे उसके साथ सैंक्शनें लगी हुई हैं, बिजनेस कर नहीं सकता था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसको जो, हालांकि उस पाकिस्तान एक बड़े भाई का होने का सबूत दे रहा था, वहां पर दुनिया को एक तरफ रखते हुए उनके साथ बिजनेस भी कर रहा था। और मैं कल की बात करना चाहूँ तो जिस वक्त ये यहाँ पर हमला किया गया, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर तजारती मुआहिदा होने जा रहा था। हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन और दूसरे बिजनेसमैन वहां पर बचकोट में वहां पर मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को जब ये पता चला तो पाकिस्तान ने अपने हमले के साथ ही उनको अपने जो जितने भी थे वो करीब खत्म कर दी। साथ ही साथ उनका जो सफीर था वो तो कुदरती तौर पर वो ईरान में ही था, ईरान को उसको
सफीर को भी मना कर दिया कि पाकिस्तान में आपने नहीं आना, और जो पाकिस्तानी सफीर था उसको भी बुला दिया गया। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने कम वक्त में उनको ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि जो आपने हमला किया उसके कम से कम 5 से 6 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन जो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान पे उन्हें हमला किया वो BLB जो दहशतगर्द तंजीम है उनको हमला किया गया, हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा यही बताया कि जो ईरान है वहां पर दहशतगर्द तंजीमें वहां पर परवान चढ़ती हैं। अगर मैं मौजूदा बात करना चाहूँ तो जो पहले भी यानी कि जो इंडिया की तरफ से था, यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर था बलूचिस्तान जावदे, तो ये वो भी वहां से ईरान के नजरिया आया था। और मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो ईरान में परवान चढ़ती हैं और दीगर ममालिक की में वहां पर हमले की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो शॉर्ट वक्त में उनको जवाब दिया गया कि पाकिस्तान एक बड़े भाई होने का तो सबूत देता था, लेकिन अगर हमारी खुद मुख्तारी और आजादी पे हमला किया जाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा यानी कि जब भी देखा हो कि ईरान ने इंडिया ने भी पाकिस्तान पे हमला किया था उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। और हालांकि पाकिस्तान से वो ज्यादा पावर में भी हैं, फौज में भी हैं, इक़्तिदार में, सब चीजें उनके पास ज्यादा होने के बावजूद भी उन्होंने मुस्बत पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया था। तो ईरान तो फिर भी कोई चीज नहीं थी पाकिस्तान के आगे। तो इंडिया को जो पाकिस्तान अगर इतना अच्छा मुस्बत जवाब दे सकता तो ईरान को भी चाहिए था कि जब उसने जवाब दिया तो पाकिस्तान ने मुस्बत दिया कि और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान कोई छोटा ममालिक नहीं है, एक तो सुपर पावर है, लेकिन साथ साथ अगर पड़ोसी मुआइयों के साथ सिर्फ दोस्ती का हक अदा करता है, लेकिन उसकी आजादी को, खुद मुख्तारी को मुस्बत आप नहीं लेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बड़ी खबर है, आपको बताते चले ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगुर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की भी जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशत गर्दों के हमलों ठिकानों पर टारगेटेड हमले कर दिए, मुतादिद हलाक हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी भी सिविलियन या फौजी हदफ को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग बर सर में चार का नाम दिया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशत गर्द भी मारे गए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनागाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शाहिद के साथ मुतादिद ब्रज़ीर्स भी शेयर किए, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नेहाद सरमचारों पर मुसद्दका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैन अल-अक़वामी बरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरान अवाम के साथ बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि हमने हमेशा दहशतगर्दी के लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। 2 रोज कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ भाग और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थी। पाकिस्तान ने अपने फिजाई हुदूद की बिलाइश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हुदूद में हमले की शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज भी निकल सकते हैं। ये कहना था पाकिस्तान का। आपको अपडेट करते चलें, बड़ी खबर है। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगुर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी मंजर आम पर आ गई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले किए, मुतादिद हलाक हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी भी सिविलियन या किसी भी फौजी हदफ को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों पर टारगेटेड हमले किए। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान ही पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनागाहों से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर करता रहा है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतादिद ब्रज़ीर्स भी शेयर किए हैं, लेकिन संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई नाम नहाद सरमचारों पर मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। दफ्तर खारजा के मुताबिक उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बरादरी के एक ज़िम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। 2 रोज कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई थी। पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद की बिलाइज्जाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हुदूद में हमले की शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज लाहक होंगे। आपको अपडेट करते चलें, बड़ी खबर है ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पंजगुर में मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड हमले, मुतादिद अफराद हलाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। इनसे जानेंगे। अब गुल साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की ये जो जवाबी कार्रवाई हुई है कल शब, जो ईरान ने पाकिस्तान के फ़ज़ाई हुदूद से इस्तेमाल किया, खिलाफ वर्जी की है, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? रहीम, बिल्कुल लायक तहसीन है। कौम की तर्जुमानी की। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा की तरह पाकिस्तानी कौम के साथ झुकने नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान ने ये एक बड़ा सोच समझ के जवाब दिया और मेरे ख्याल में बड़े तहम्मुल के साथ दिया। जब दफ्तर खारजा के अंदर ईरानी नाज़िमुल अमूर को बुलाया गया, उनको पूछा गया कि भाई आप इसका कोई जवाब दें, लेकिन शाम तक वो जवाब नहीं आया तो पाकिस्तान ने एक सख्त कदम उठाया और दोनों तरफ जो हमारे सफीर थे पाकिस्तान के और दूसरी तरफ ईरान के सफीर थे, उनको जो है अपने अपने मुल्क वापस बुला लिया गया। तो ये एक पैगाम था सफारती सतह के ऊपर, जिससे मेरे ख्याल में समझ जाना चाहिए था सियासी सतह को कि ये मामलात अब बहुत संगीन हो गए। लेकिन जब डेवोस के अंदर ईरानी वजीर खारजा ने यह बयान दिया कि हाँ ये हमने हमला किया और उस ढटाई के साथ उन्होंने ये बात की, जिसका फिर पाकिस्तान के पास कोई और जो है वो तरीकाकार नहीं था कि वो इसका मौसर जवाब देता। सुबह 6 बजे ये कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें कोई सिविलियन जो है उसको टारगेट नहीं किया गया और BLA जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, यूनाइटेड नेशन की लिस्ट के ऊपर, टेररिस्ट लिस्ट में मौजूद है 5वें नंबर पर, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया और मौसर जवाबी कार्रवाई करके दुनिया को और पाकिस्तान के अंदर भी बताया गया। सोशल मीडिया के वो तमाम लोग जो गलाजत बक रहे थे, उनके भी मेरे ख्याल में शर्म से डूब मरने का मुकाम है। ये ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार जो है, ये उन लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक नफरतों को जन्म दिया और उन भगोड़ों और मेरे ख्याल में ऐसे बेगैरत जो पाकिस्तान की धरती को बेच के गैर मुमालिक चले गए, उन लोगों के लिए भी ये एक बड़ा पैगाम है कि पाकिस्तान जो है उसने वो कुछ करके दिखाया जो कि वो पता नहीं क्या क्या गलाजत जो है वो उगल रहे थे और अपनी जहन की जो गंदगी थी उसको सोशल मीडिया पे फैला रहे थे। अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक, रियासत पाकिस्तान के मुतल्लिक आज उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। दूसरी तरफ जो है मैं ये समझता हूँ कि मामलात को ठंडा करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान और ईरान जो है वो 2 बरादर मुमालिक हैं और इस्लामी मुमालिक हैं। दोनों का बॉर्डर जो है वो कॉमन है, एक 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। ईरान ने भी जो करना था वो कर दिया, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया। अब मामलात को ठंडा करने के लिए कोई कमेटियां तश्कील देनी चाहिए दोनों अतराफ, जाके मामलात जो हैं वो बेहतर हों, इस्तेहकाम पैदा हो और जो हमारा मुआशी इससे खराबी पैदा होगी। पाकिस्तान से चावल जा रहा था, वहां से LPG आ रही थी, इसी तरीके से जो 250 क्रॉसिंग बॉर्डर जो है और ताफ्तान बॉर्डर है वो भी अफेक्ट होंगे।
जो गोश्त का तिजारत थी, इसी तरीके से चावलों का तिजारत है और डेयरी की तिजारत है, मेरे ख्याल में उसके अंदर जो है वो एक तातुल आ जाएगा जो कि ना पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा ना ईरान के हक में बेहतर होगा। तो मामलात को ठंडा करना चाहिए बजाय इसके कि इस टाइम पे जो ईरान ने एक मेरे ख्याल में इमेच्योर सोच का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बगैर इतला दिए एक कार्रवाई अमल में लाए। हालांकि हॉटलाइंस मौजूद हैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट की सतह के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस की सतह पर और इसी तरीके से हमारे वजारत खारजा की सतह पर, उन तीनों को जो है बाईपास किया गया। और फिर पाकिस्तान जो इस कार्रवाई जो पाकिस्तान ने अभी की है ऑपरेशन मरबर सरमचार के लिए, वो एक बहुत अहमियत के हामिल है क्योंकि पाकिस्तान माजी में मुतअद्दिद बार ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज को बताता रहा कि ये लोग पाकिस्तान में मतलूब हैं, ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस करके आपकी तरफ आ जाते हैं। इन लोगों को जो है आप इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करें, लेकिन जब इतना अरसा गुजरने के बाद मौसर कार्रवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो अमन मुआहदा था उसको ईरान ने पहले जो है वो सबोताज किया, जिसके नतीजे के अंदर जो है फिर पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई का हक जो कि वो महफूज रखता था और ये बार बार वो बोल रहा था कि हम जो है अपना कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं, बहुत उस बात के ऊपर फिर कार्रवाई अमल लाएगी। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद बुलबुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी राय का, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत खूब कहना था कि मुआशी हालात ख़राब नहीं करना चाहिए, ईरान एक बरादर मुल्क है, कुछ कमेटियाँ तश्कील देनी चाहिए और अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से मिसाइल हमले किए जाने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी हुदूद में ईरान के हमले की शदीद मजम्मत कर दी है और कहा है कि तेहरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि ईरान खत्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, उसकी वजह से अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान के लिए अपने मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार भी है। So we do condemn those strikes. We've seen Iran violate the sovereign borders of 3 of its neighbors in just the past couple days, and I will say that the difference is the context very much matters. I think it is a little rich for on one hand Iran to be the leading funder of terrorism in the region, the leading funder of instability in the region, and on the other hand claim that it needs to take these actions to counter terrorism. So when you आपको बताएं कि पाक ईरान कुशीदगी पर चीन की जानिब से सालसी की पेशकश। कराची में चीन के काउंसल जनरल यांग यूडोंग का कहना था कि पाक ईरान इख्तलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। दोनों मुल्कों से कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ही आगे बढ़ने दें। काउंसल जनरल ने मजीद कहा कि ताल्लुकात आलमी इक़्तिदार के मुताबिक ही आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान और ईरान एक बरादर मुल्क है, एक यहाँ पर बैठ कर बातचीत से मसला हल करने चाहिए। चीन अच्छे दोस्त पाकिस्तान और ईरान से ये कहता है कि हम किरदार अदा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उनका ये भी कहना था कि चीन पाकिस्तान ईरान इख्तलाफात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अब आपको अहम तरीन खबर से अपडेट करें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी कुशीदगी के बाद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर दौरा डेविस मुख्तसर कर दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं। इससे कबल उन्होंने 22 जनवरी को वतन वापस आना था। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी कुशीदगी की वजह से निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने अपना दौरा डेविस को मुख्तसर कर दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं। अब वतन वापस आज पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे कबल उन्होंने 22 जनवरी को मुल्क वापस आना था। अपडेट करते चले आपको, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी कुशीदगी के बाइस दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है, वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने अपना दौरा डेविस को इस वजह से मुख्तसर तरीन कर दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर आज रात ही वतन वापस पहुंच रहे हैं। इससे कबल उन्होंने 22 जनवरी को वतन वापस आना था।
निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद में हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमला बैन अल-अक़वामी कवानीन और दो तरफा ताल्लुकात की रुख की भी खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने बताया कि निगरान वजीर खारजा ने हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी खतरे के लिए एक मुश्तरका खतरा है। एक तरफा इकदाम से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ सीज़फायर में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब मुश्तरका कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का यह कहना था कि पाकिस्तान की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ। हुकूमती अमल दारी से महरूम इलाके में कार्रवाई दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक अहम है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्द मुश्तरका दुश्मन है, इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन जरूरी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता कभी भी नहीं करेगा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि इंसदादी दहशत गर्दी के मुश्तरका निज़ाम को रीएक्टिवेट किया जाए। हम आहंगी बेहतर बनाने और बातचीत से आगे बढ़ने के अमल को मजीद मौसर बनाना होगा, कुशीदगी में कमी लाना होगी। शहबाज शरीफ ने मजीद ये भी कहा कि मुसल्लह फौज ने ऑपरेशन के जरिए अपनी पेशा वराना काबिलियत, महारत और सलाहियत का मुजाहरा पेश किया। ऑपरेशन की क़यादत और इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम अफसरान को खराज तहसीन पेश करता हूं। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें कुशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मजीद खराब ना हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे दौर में ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। सऊदी अरब और ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान और ईरान को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। पाकिस्तान और ईरान में बलोच अलहदगी पसंद तहारीक चल रही है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और ईरान को इन तहारीक से मुश्तरका तौर पर निमटने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शीरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को काफी सोच समझ कर जवाब दिया और ये बिल्कुल ठीक था। ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार से मुतालिक गुफ्तगू के दौरान शीरी रहमान ने कहा कि पाक ईरान सरहद पर कई साल से इस किस्म के मसाइल होते रहे हैं। शीरी रहमान ने कहा कि बेहतर होगा कि दोनों ममालिक इस किस्म के तनाजात को मजीद बढ़ने ना दे। पाकिस्तान के ईरान के साथ पुराने रवाबित हैं, ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पर हमला गैर मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का मजीद ये भी कहना था कि ईरान को अगर कुछ खदशात थे तो वो पाकिस्तान को आगाह कर सकता था। ईरान के साथ कुशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मगरबी सरहदों पर फिजा में होने वाली बरसरगर्मी को सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है। ताज़ा सूरत हाल के पेश नजर मगरबी सिमट से आने वाली तमाम परवाजों से मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। जराये के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी को मगरिब से पाकिस्तान की हुदूद में आने वाली तमाम परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत मौसूल हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईरान समेत तमाम मगरबी परवाजों की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत मिली है। इससे पहले मगरिब की तरफ से पाकिस्तान आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग कभी नहीं हुई। ताहाल पाकिस्तान और ईरान की फिजाई हुदूद कमर्शियल परवाजों के लिए खुली हुई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ताहाल ईरान के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश के मुतालिक कोई हिदायत नहीं मिली। इसराइली फौज ने गजा समेत मकबूजा मगरबी किनारे में ड्रोन हमले और जमीनी दरानदाजी को तेज कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में वाक़या अर्दन के मिलिट्री फील्ड अस्पताल पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी समेत मगरबी किनारे में हमले से कम अज कम 7 अफराद शहीद और
मुतादिद जख्मी होने की रिपोर्ट मौसूल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 24,448 अफराद शहीद, 61,504 जख्मी, जबकि अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा में हर एक शख्स भूखा है क्योंकि इसराइल इस इलाके पर बमबारी, मुहासरा और इमदाद रोक रहा है। यमन के हौसी ग्रुप के बहीरा अहमर में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने हौसी ग्रुप को दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि हौसी ग्रुप को खुसूसी आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये इकदाम बहीरा अहमर में मुसलसल हमले और खतरात पर किया गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस इकदाम का मकसद हौसी ग्रुप को हथियारों और माली इमदाद की फराहमी से भी रोकना है। हौसी ग्रुप बहीरा अहमर खलीज अदन में हमले रोक दे तो फैसले को बदला जा सकता है। दूसरी जानिब हौसी ग्रुप ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी इकदाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल भी किया गया। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब हुकूमत और कनाडा के दरमियान अफरादी कुव्वत के कनाडा भिजवाने के हवाले से मुजवज़ा मुआहदे पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ माहौल, ख़ुसूसन स्मोक से निमटने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। कैनेडियन हाई कमिश्नर लीस्ली स्केलन ने स्मॉग में कमी के लिए लाहौर में मौसमी बारिश के तजर्बे को खुश आइंद करार दिया। हाई कमिश्नर लेस्ली स्केलन ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू के दौरान उन्हें दौरा कनाडा की दावत देते हुए कहा कि उम्मीद है आपके दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का आज से बाकायदा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। लीगी कायद कौमी असेंबली के हल्का NA 68 से उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ के इंतखाबी जलसे में शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ मुआशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयानिया लेकर मैदान में उतरेंगे। PTI दौरे हुकूमत की नाकामियों को भी इंतखाबी बयानिए का हिस्सा बनाया जाएगा। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम इंतखाबात 2024 के उम्मीदवारों का डेटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 266 जनरल नशिस्तों के लिए 5,121 उम्मीदवार मैदान में हैं। मर्द उम्मीदवार 4,807 और खातीन उम्मीदवार 312, जबकि 2 ख्वाजा सराबी कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर मद्दे मुकाबल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा बताई जाती है। जनरल नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर 1,780 मर्द और 93 खातीन समेत 1,873 उम्मीदवार होंगे। 3,248 उम्मीदवार कौमी असम्बली का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों में 3,027 मर्द, 219 खातीन और 2 ख्वाजा सरा शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार मैदान में। सियासी जमातों से वाबस्ता 4,158 और 8,536 आज़ाद उम्मीदवार भी सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब असम्बली के लिए 6,710 उम्मीदवार मैदान में होंगे। 1,874 उम्मीदवार सियासी जमातों और 4,836 आज़ाद उम्मीदवार होंगे। सिंध असम्बली के लिए 2,878 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त होगा। सिंध असम्बली के लिए 949 उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों और 1929 आज़ाद उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 1834 उम्मीदवार मैदान में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 801 उम्मीदवार पार्टी टिकट और 10,033 आज़ाद उम्मीदवार ठहरे। बलोचिस्तान असम्बली के लिए 1273 उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान असम्बली के लिए 534 का ताल्लुक सियासी जमातों से होगा। बलोचिस्तान असम्बली के लिए 739 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के गिरफ्तार सरबराह और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने 9 मई से मुतालिक मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। उन्होंने दरख्वास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर की है। शेख रशीद की जानिब से दरख्वास्त वकील सरदार शहबाज के तवसुत से दायर की गई, जिसमें मौकिफ अपनाया गया
کہ شیخ رشید مقدمے میں نامزد نہیں ہیں. انہیں 9 مئی کے بعد سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری جانب عدالت نے شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر پولیس کو 20 جنوری کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل چوتھے روز بھی مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. شدید مندی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں 63,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گئی ہے. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 893 پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی، جس کے ساتھ 100 انڈیکس 62,674 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا. واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 63,567 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی. تو آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند برقرار ہے. دھند کی وجہ سے شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا. موٹر وے M1 کو رشکئی سے پشاور اور برہان سے سواپی، M2 کو اسلام آباد ٹول پلازا سے ٹھوکر نیاز پک تک بند کر دیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ M3 کو فیض پور سے انٹرچینج درخانہ، M4 کو فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں، M5 کو ظاہر پیر سے اوچ شریف اور رحیم یار خان سے روخلی تک بند کر دیا گیا. M11 کو محمود بوٹی سے سمبڑیال ٹول پلازا تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا جا چکا. ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے. شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات پر سفر کرنے کو ترجیح دیں. صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں. سعید عمران احمد نے مزید کہا کہ مسافر ڈرائیونگ کے دوران آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں. اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں. کسی بھی معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ملک بھر کی طرح اکاڑا میں بھی دھند کا راج برقرار. شہر اور گردوراں میں شدید دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گیا. اکاڑا میں شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر. GT روڈ سمیت شہر کے مختلف راستوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. موٹر وے پولیس کی جانب سے مسافر حضرات غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. موٹر وے پولیس کی جانب سے ڈرائیور حضرات کو محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت. ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنائیں. خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ PTA نے عوام کو ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے قانون کی پاسداری کرنے کی ہدایت دے دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ PTA نے عوام کی ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے قانون کی پاسداری کرنے کی ہدایت دے دی ہے. PTA کے مطابق توہین آمیز، غیر اخلاقی، ریاست مخالف مواد وغیرہ پر مبنی غیر قانونی آن لائن مواد ہرگز اپلوڈ نہ کریں. ایسا مواد پیکا 2016 اور PPC 1860 کے تحت جرم ہے. مقامی قوانین کو جانیں، پوسٹ کرنے سے پہلے حقائق کا جائزہ لیں اور دوسروں کی رائے کا احترام کریں. انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر توہین آمیز، نفرت انگیز اور ریاست مخالف پوسٹ جیسے غیر قانونی مفاد کی شیئر کرنے سے گریز کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع، سالمیت اور تحفظ یا پبلک آرڈر کے خلاف آن لائن مواد اپلوڈ کرنا اور پھیلانا غیر قانونی ہے. ایسے مواد کو بلاک کرنے، ہٹانے کے لیے PTA کی ویب سائٹ پر رپورٹ کریں. میڈیا پلیٹ فارم پر موجود آپ کی پروفائل یا اکاؤنٹ آپ کی شخصیت کا مکمل عکاس ہیں. ان میں تصاویر، ویڈیو، سٹوریز اور رائے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کیا پسند اور کیا ناپسند کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں آپ فالو کرتے ہیں شامل ہیں. مثبت ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مواد پوسٹ، لائک یا شیئر کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہیں یہ مواد بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث تو نہیں بنے گا. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے متعلقہ مقامی قوانین کو جانیے اور ان پر عمل درآمد کریں. اپنی ذاتی معلومات کا تحفظ کریں. دوسروں سے متعلقہ معلومات شیئر کرنے سے پہلے ان کی رضامندی لیں. صرف مستند رائے سے حاصل کردہ پوسٹ کو شیئر کریں. مختلف آراء کا احترام کریں. الزام تراشی سے گریز کریں. غیر قانونی مواد جیسا کہ توہین آمیز، نفرت انگیز، فحش یا ریاست مخالف مواد شیئر کرنے سے گریز کریں. غیر قانونی مواد کو بلاکنگ کے لیے متعلقہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور PTA کو رپورٹ کریں یا FIA کو رپورٹ کریں. آئیے بنائیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو محفوظ سب کے لیے. بعض دفعہ لوگ بغیر تصدیق کے سوشل میڈیا پر دی گئی خبریں شیئر کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر کوئی بھی کسی بھی وقت اور کچھ بھی پوسٹ کر سکتا ہے.
اس وجہ سے سوشل میڈیا پر آنے والی کافی خبریں بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ کافی دفعہ ان جھوٹی خبروں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ کافی نقصان بھی ہوتا ہے۔ عام افراد کے لیے سائبر کرائم اور ان کی سزاؤں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی خبریں سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اسے شیئر کرنے کے بجائے رپورٹ کریں۔ آئیں اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم سب مل کر پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ کنڑ سے دہشت گرد کی اہلیہ نے زمینی حقائق بیان کر دیے۔ دہشت گرد کی بیوہ کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی صرف ان کو پیسے دیتی ہے جن کے نرینہ اولاد ہو یا جو ٹی ٹی پی کا قریبی رشتہ دار ہو۔ خاتون نے بتایا کہ کنڑ مرورہ میں ہمارا گھر ہے اور ہم باجوڑ سے آئے ہیں۔ شوہر طالبان کے ساتھ دہشت گردی کرتا ہے۔ میں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کام کرنے سے اسے بہت بار منع بھی کیا۔ جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ غلط تھا، مگر وہ منع کرنے کے باوجود نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی کارروائیوں نے ہمیں ملک بدر کر دیا اور اب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ٹی ٹی پی اپنے لوگوں کو پیسے دے رہی تھی مگر ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ میری 2 بچیاں ہیں لیکن ٹی ٹی پی صرف ان کو پیسے دیتی ہے جن کی نرینہ اولاد ہو یا جو ٹی ٹی پی کا قریبی رشتہ دار ہو۔ میں کئی بار فقیر ملا کے گھر گئی اور مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ 2 مگر کچھ نہیں دیا۔ ہم بہت بے آسرا ہیں اور بھیک مانگ کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ نړ په دې مراوره کې اوسېږو او دلته هم کور دی. موږ د باجوړ یو، باجوړ نه راغلي یو په انقلاب کې. باجوړ کې چې کله انقلاب و نو زما خاوند هم په طالبانو کې و. ما ورته سوالونه او زاریګانې کولې چې مه کوه مه کوه، دا شی ښه نه دی. هغه نه قلارېدو، موږ یې هم د ملکه راورک کړلو. اوس دغسې در په در ګرځي، هېڅ هم نشته. بله ورځ دغه طالبانو روپۍ شلې موږ له 1 روپۍ نه ده راکړې. زما 2 وړې جینکۍ دي، ماشومان دي چې د چا هلکان یې هغو له یې ورکوي او په طالبانو کې چې د چا څوک خپل یې هغو له یې ورکوي، موږ له یې نه راکوي. څو پیرې په دغه فقیر مولا پسې ورغلم، ورته مې وویل چې لږې روپۍ راکوي، هېڅ وس او دس هم نه کوي. کنړ د خلکو ته پته ده ټولو. वफाकी वजीर आई टी डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी की बदौलत दिसंबर में आई टी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नवंबर में 13% के बाद दिसंबर में आई टी एक्सपोर्ट 22% इजाफे से $303 मिलियन रही। 50% डॉलर रखने की सहूलत, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, फ्रीलांसर्स के लिए सहूलत बुनियादी अवामिल हैं। उन्होंने कहा कि आई टी इंडस्ट्री के लिए सहूलियात पर वजीर आजम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के शुक्रगुजार हैं। हमारी पॉलिसियों का मकसद आईटी और टेलीकॉम सेक्टर का फरोग और मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देना है। ये सिर्फ आगाज है, जल्द बड़े नताइज आएंगे। $10 अरब का हदफ भी पूरा होगा। इस्लाहात से आने वाली हुकूमत के लिए आईटी इंडस्ट्री के फरोग का रास्ता बना दिया है। चेयरमैन पाशा सुहेब खान का कहना था कि आईटी एक्सपोर्ट में इजाफे पर वजीर आईटी SIFC आईटी इंडस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं। $50% रिटेंशन अकाउंट्स को अलाउ किया गया। इसका मतलब ये है कि आईटी इंडस्ट्री अपना एक्सपोर्ट रेवेन्यू डॉलर्स में 50% डॉलर्स में रख सकती है और आसानी से बाहर स्पेंड कर सकती है। इस तरह आईटी इंडस्ट्रीज अपना रेवेन्यू पाकिस्तान लाना शुरू हुई और इसकी वजह से पिछले 30 दिनों में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। इंडस्ट्री को ट्रेन मैन पावर देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तश्कील दिया गया, जिसमें 1 लाख लोग हर साल आईटी इंडस्ट्री में प्लेस किए जाएंगे। गवर्नमेंट उनको इंटर्नशिप्स देगी, गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देगी और गवर्नमेंट मराद देगी आईटी इंडस्ट्री को 1 लाख लोग नए अब्जॉर्ब करने के लिए। इससे हर साल आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू $2.5 अरब इंक्रीज करेगा। ये काम मुश्किल भी थे और पेचीदा भी थे,
کیونکہ حکومت میں کئی مختلف منسٹریز کو اور محکموں کو کوارڈینیشن کی ضرورت تھی تاکہ یہ جو بہت دیر سے التوا کا شکار اصلاحات ہیں یہ کی جا سکیں اور ان پروجیکٹس کو مکمل کیا جا سکے. اس کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا SIFC نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا اور اس کی وجہ سے یہ تمام کام اتنے عرصے میں مکمل ہو سکے. اور اب جب کہ ایک نئی حکومت آنے والی ہے ان تمام اصلاحات کو لے کے وہ لوگوں تک یہ سہولتیں پہنچا سکیں, IT انڈسٹری کو مزید پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 851 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. واپس جانے والوں میں 267 مرد, 168 خواتین اور 416 بچے شامل ہیں. افغانستان روانگی کے لیے 74 گاڑیوں میں 104 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 17 جنوری تک مجموعی طور پر 4,70,396 افغان باشندے اپنے ملک جا چکے ہیں. کراچی سمیت دیگر شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بڑی تعداد موجود تھی جن کی وجہ سے اسمگلنگ اور بطخ خوری بہت عام تھی. ANF کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری. 11 کارروائیوں میں 389 کلو سے زائد منشیات برآمد کر کے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا. باچا خان ایئرپورٹ پر ابوظہبی جانے والے مسافر کے پیٹ سے 5 چرس بھرے کیپسولز برآمد. ملتان ایئرپورٹ سے مسقط جانے والے 2 مسافروں سے 250 گرام نشہ آور گولیاں پکڑی گئیں. جناح ایئرپورٹ کراچی پر دوحہ جانے والے مسافر سے 210 گرام آئس برآمد ہوئی. علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ملیشیا جانے والے مسافر سے 88 گرام ہیروئن, جبکہ ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کراچی سے تھائی لینڈ بھیجنے والی کنٹینر سے 35,44,000 نشہ آور گولیاں برآمد ہو چکی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ 35,440 گولیاں برآمد ہوئی ہیں. تیرا اور اکزئی کے قریب بھی 2 مختلف کارروائیوں میں 210 کلو چرس اور 7 کلو فیون پکڑی گئی. RCD روڈ ہب کے قریب سے 2 ملزمان سے 91 کلو چرس برآمد, جبکہ کوٹ عبد المالک کی بات کریں تو انٹرچینج شیخوپورہ کے قریب ملزم سے 29 کلو چرس اور 7 کلو فیون برآمد ہوئی. ملک بھر کی طرح عارف والا میں بھی مرغی کا گوشت اڑان بھر گیا. مرغی کا گوشت بھی قریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا. خریدار بھی پریشان ہے تو دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رضا زیدی سے. جی رضا, بتائیے گا عوام کا کیا کہنا ہے؟ ہم اس وقت موجود ہیں آری والا میں ایک چکن شاپ پر, جہاں پہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرغی کا ہی گوشت تھا جو عام آدمی کی پہنچ میں تھا, وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اس وقت یہاں پر موجود ہیں خریدار بھی اور دکاندار بھی. ہم پہلے خریدار سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. جی بہت مہنگا گوشت ہو گیا جی, یہ ہے کھان واسطے جی گوشت یہ 600 700 دسن ڈے آ, یہ 400 ہونا چاہیے. غریب آدمی کی کھائے گا یہ گوشت ہی پورا کوئی نہیں لبا اور کچھ ہے نہیں کھان نو. یہ کی کرنے لوگ بھوکے مارتے آ, گوشت گندا یہ بھی اپنا وکدا نہیں گا سورنا کی کرنے لوگ. ابھی آپ نے بات سنی خریدار کی, تو آپ چلتے ہیں دکاندار کی جانب, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چکن کدری یہ ہے کہ پہلے عرصہ میں تو چکن ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا تھا, اب فارمر کی وجہ سے نا وہ بہت زیادہ چکن کاسٹلی آ رہا ہے. تو جب ہمیں کاسٹلی آ رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپلائی کم سے کم دے, لیکن پھر بھی کافی کاسٹلی ہے. یعنی کہ مٹن ہے, بیف ہے, وہ امیروں کی پہنچ میں ہے, لیکن چکن جو ہے نا یہ غریبوں کی پہنچ میں تھا, لیکن یہ غریبوں کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے. ہم پولٹری ایسوسی ایشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ اس کو نیچے لایا جائے اور غریب عوام کی پہنچ میں لایا جائے, وہ بھی کھا سکے اور سکھ کا سانس لے. شکریہ. اور اب رخ کرتے ہیں فاضل پور کی جانب, جہاں الیکشن 2024 کا میدان سج چکا ہے. عوام اور سیاستدانوں میں دلچسپ کھیل جاری. فاضل پور کے حلقہ PP 94 اور حلقہ N 188 میں کون کون سے امیدوار ہیں, کس کس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے, جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یوسف رضا سے. جی یوسف, اپڈیٹ کیجیے گا. یہاں بالکل الیکشن 2024 کا موقع سج چکا ہے. امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ N 188 اور PP 294 فاضل پور میں. N 188 نون لیگ کی طرف سے ڈاکٹر حفیظ الرحمان قادری شک پاکستان تحریک
इंसाफ की तरफ से अहमद अली खान दरीशक दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। चूँकि अहमद अली खान दरीशक को बल्ले का निशान नहीं मिला गया, वो आज़ाद हैसियत से हुक्के के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर बात की जाए PP 294 की, तो नून लीग की तरफ से परवेज़ इकबाल खान गुरचानी और तहरीक इंसाफ की तरफ से आतिफ अली खान दरीशक मैदान में उतरेंगे। अगर बात की जाए पीपल पार्टी की, तो चौधरी अख्तर हुसैन अरही JUF के उम्मीदवार, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी के डॉक्टर इरफानुल्लाह मलिक साहब मैदान में आएंगे। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को आवाम किसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है, कोई नया चेहरा लेके आती है या वही पुराने चेहरे मुंतखब करती है। जी हाँ, बिल्कुल इलेक्शन 2000 खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर